Hello my dear students. Today we'll study about the one of the important concept of alternating current, that is different type of circuit in alternating current. Yes, it is quite a gap between this video and my last video because of certain reason. So now we will study the different circuits of alternating current. Just like when in alternating current circuit, when pure R is there, when in a circuit pure resistance is there. How? Suppose that this is alternating current circuit where only pure R is kept or added. If potential is applied, V is equal to V0 sin omega t. Okay. If resistance is R, potential is V is equal to V0 sin omega t. For any instant, how will apply the Ohm's law? Because we have studied about Ohm's law, V is equal to IR. Similarly, what we could write instead of V, V0 sin omega t equal I into R, or I equal V0 sin omega t upon R. This V0 upon R would be what? It is the maximum value of current, because formula we have studied I is equal to I0 sin omega t. So I is equal to I0 sin omega t, where V0 upon R is equal to I0, or in another word, V0 upon I0 is equal to R. That is a, what is that? It is a resistance. So if V is equal to V0 sin omega t, so I is equal to I0 sin omega t, which says that there won't be any phase difference between current and voltage when there is a pure R circuit. जब pure R circuit होगा तो वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा. चलिए डायग्राम से भी समझते हैं इसको. If this is the diagram of V is equal to V0 sin omega t. So similarly, you will see there won't be a phase difference I is equal to I0 sin omega t. No phase difference. If you want to make a phase diagram, this axis shows V, this axis shows T. Suppose that this is value of I0, this is the value of V0. So what we are saying, both are in same phase, no phase difference. This is phi value. So इन प्योर आर सर्किट हम क्या देखते हैं, करंट और वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है. इफ एनीबडी विल आस्क व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज व्हेन दे आर द प्योर आर सर्किट, आंसर वुड बी 0. चलो, ये तो प्योर आर सर्किट की बात आती है. अब हम यहीं पे पढ़ते हैं. फर्स्ट वाज प्योर आर सर्किट, सेकेंड वी विल स्टडी हियर when pure L circuit means this is alternative circuit, V is equal to V0 sin omega t, and we are applied L, pure L, okay, pure inductance. When pure inductance is there, we will suppose it don't have any resistance. हमने प्योर इंडक्टेंस लगाया है और ये सपोज है इसमें कि इस पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है. अब ध्यान से सुनना, अल्टरनेटिव वोल्टेज कैसा वोल्टेज होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था. ऐसा वोल्टेज जो पीरियोडिकली चेंज होता है और कंटिन्यूअसली अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता रहता है. जब पोटेंशियल कंटिन्यूअसली चेंज होगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, बिकॉज इट विल अपोज द
मेन करंट और मेन पोटेंशियल। तो L के एजेस के बीच क्या जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस्ड PD और इंड्यूस्ड पोटेंशियल। अब फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस्ड PD या इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू L DI अपॉन DT विद द हेल्प ऑफ होम, फैराडे लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ यही कहता है, E इक्वल टू L DI बाई DT। कितना होगा, जितना एक्सटर्नल वोल्टेज लगाए थे उसी के इक्वल एंड अपोजिट जनरेट हो जाएगा। अब ध्यान समझना एक बात, अगर इक्वल अपोजिट जनरेट हुआ वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज ये है, इसके अपोजिट इतना वोल्टेज जनरेट हुआ, सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अनदर वर्ड व्हाट वी कैन से, V0 साइन ओमेगा टी माइनस LDI/dt इक्वल जीरो, सिंपल। और अनदर वर्ड व्हाट यू कैन राइट, LDI/dt इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। देखो ध्यान से, और ऐसे भी इक्वल अपोजिट जनरेट हो रहा था। यहां से देखो जरा, DI की वैल्यू क्या हो जाएगी, DI इक्वल टू V0 अपॉन L साइन ओमेगा टी dt। हमको V मालूम है, कितना लगा है, V0 साइन ओमेगा टी। हमें निकालना क्या है, I के साथ क्या हो रहा है। तो अगर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें, we can get the value of I. How? Integration of DI how much? I. V0 upon L is constant. इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होगा बताइए भाई, ओमेगा इन ब्रैकेट माइनस कॉस ओमेगा टी, बिकॉज साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी का ओमेगा होता है। तो क्या बना, आई इक्वल टू V0, हाँ ओमेगा की 1 अपॉन ओमेगा, सॉरी V0 अपॉन ओमेगा, इट इज 1 अपॉन ओमेगा ना, यस। ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करें, डिफरेंस तो कर नहीं रहे, तो 1 अपॉन ओमेगा। अब ध्यान से मुझे एक बात बताओ सभी लोग, यहाँ पे सबको समझ में आएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। माइनस कॉस ओमेगा टी है तो इसको बाहर हम कर लेते हैं, पूरा माइनस, ठीक है। कॉस ओमेगा टी को साइन के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन हिट कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, माइनस अंदर अगर चला जाएगा तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, आई इक्वल टू V0 अपॉन ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ध्यान से देखिएगा, ये V0 अपॉन ओमेगा L साइन के एक्सेप्ट जो भी वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो I इक्वल टू क्या बना, I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। वोल्टेज कितना था, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। करंट कितना आया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब क्या हुआ, करंट पीछे चल रही है, वोल्टेज आगे चल रहा है। कितनी पीछे चल रही है, पाई बाई 2 पीछे चल रही है, बैकवर्ड। इट मीन्स इन प्योर L circuit voltage is leading by current by how much, voltage is leading by current by how much, pi by 2, or another word current is lagging pi by 2 from the voltage। इसका डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, do we have space, yes I can erase this part and we can have this, you can take a screenshot of the same and then we will understand more here। See what exactly I want to tell you, how we will make a diagram of this।
this will show what? V इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी। अब करंट चल रही है पीछे कितनी? π/2। ये पोजीशन होगी 0 की, ये पोजीशन होगी π/2 की, बिकॉज लेट इट शुड बी ओके, दिस कंडीशन वुड बी हाउ मच? π/2। दिस वुड बी हाउ मच? पाई 3π/2 2π होगा। एक साइकिल में पूरा कितना? 2π होता है। वोल्टेज तो आगे चल रहा है, करंट कितनी पी चल रही है? π/2। तो करंट यहां से शुरू होगी, दिस इज I। जब ये 0 था, ठीक है, तो करंट कितनी थी? -π/2 थी। जब ये मैक्सिमम हुआ तो करंट यहां से शुरू हुई कितने? π/2 पे। कौन आगे चल रहा है? वोल्टेज आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है? π/2 आगे चल रहा है। और अगर इसका फेज डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे बेटा? देखिए, बड़ा आसान है। ये I है, ये क्या है आपका? ये शो कर रहा है V0, ये ओमेगा टी है। करंट पीछे है, पीछे मैंने कहा है नीचे है। कितनी नीचे है? 90 डिग्री नीचे। ये किसको शो करेगा? I0 को शो करेगा। करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय वोल्टेज हाउ मच? 90 डिग्री। करंट से देखो ये 90 डिग्री वोल्टेज क्या है? पीछे है। तो याद रखना, प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या होती है? पीछे होती। तो आगे कौन होता है? वोल्टेज। इंडक्शन में वोल्टेज से मतलब है, तो इंडक्शन में याद रखना करंट लीड करती है कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो हमने क्या पढ़ा? प्योर L पढ़ा, प्योर R पढ़ा। अभी एक और बचा है बेटा, प्योर C। व्हेन वी हैव अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, लेट्स सी। उसमें एक चीज हमने आपको बताना एक भूले थे, उसको याद रखिएगा। अभी मैंने लास्ट डेरिवेशन में जो किया था, हमने ये किया था I0 किसकी वैल्यू थी? V0 अपान ओमेगा एल। अब जरा बात बताओ मुझे, यहां से ओमेगा एल क्या हो जाएगा? V0 अपान I0। और ओम्स लॉ क्या कहता है? V अपान I का रेशियो हमेशा क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब V0 अपान I0 का भी वैल्यू रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इसे रेजिस्टेंस कह नहीं सकते क्योंकि ये R के कारण नहीं है, ये L के कारण है। तो याद रखिएगा सभी लोग, इस V0 अपान I0 को रेजिस्टेंस न करके हम बोलते हैं एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अंडरस्टूड? यहां ओमेगा एल की वैल्यू क्या होती है? एक्सेल। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है प्योर एल में, उसको लिखते हैं ओमेगा एल से, और जिसको इंडिकेट करते हैं एक्सेल से, एंड एक्सेल इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये बात दिमाग में बैठा लेना। ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट द प्योर सी। व्हेन इन अल्टरनेटिव सर्किट देयर इज अ प्योर कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड। अब चले देखते हैं, ये है अल्टरनेटिव सर्किट जहां पे प्योर सी को हमने लगा दिया। ये क्या होगा? V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब ये बताइए कितना चार्ज यहां से जनरेट होगा? VQC में क्या रिलेशन हमने पढ़ा था? क्या पढ़ा था बताइए? रिमेंबर, Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV, सो V इक्वल टू Q by C। What is the value of V? What is the value of V? V0 sin omega t is equal to Q by C. Clear? So what is the value of Q? CV0 sin omega t. हमें चाहिए करंट। So what is the formula of current? I is equal to dq by dt. So d by dt of CV0 sin ओमेगा टी। CV0 तो बाहर आएगा, और d by dt of sin ओमेगा टी क्या होता है?
कॉस ओमेगा टी, तो पूरा फंक्शन क्या बनेगा, देखिए CV0 तो पहले से ही बाहर है, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा, और साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ओमेगा टी। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, V0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। देखो ये ओमेगा सी चला जाएगा ऊपर, अब बताता हूं क्यों लिख रहा हूं, आपको बताएंगे अभी। V0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, या cos थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, हम लोगों ने पढ़ा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। क्यों किया, मालूम चल गया आपको, ये वैल्यू आई की है, ये वैल्यू आई की है। आपको मालूम है ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, I0 के इक्वल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वेयर I0 इक्वल टू V0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। दूसरे लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, और V0 अपॉन I0 इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। देख लीजिए आप, और आपको मालूम है कि V0 अपॉन I0 का रेशियो रेजिस्टेंस कहलाता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस किसके कारण है, प्योर सी के कारण है, इसीलिए इसको रेजिस्टेंस न कह के हम बोलते हैं XC, याद रखिएगा। एल में XL बोलते थे, क्या बोलते हैं XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वहां क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, या इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एग्रीड, ओके। अब बताओ भाई, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो यहाँ क्या आया, I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ करंट भाग गई आगे, वहाँ करंट पीछे चल रही थी L में, यहाँ करंट आगे हो गई। कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रही है। C से करंट याद रखना, L से वोल्टेज याद रखना। प्योर C से करंट, तो करंट आगे रहेगी। प्योर C में कौन आगे रहेगा, करंट आगे रहेगी, और L में कौन आगे रहेगा, वोल्टेज आगे रहेगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, बड़ा आसान है। देखिए ये तो V का सर्किट होता ही है। अब यहां देखिए करंट ऊपर हो गई, कितनी ऊपर हो गई, 90 डिग्री। जब ये 0 था वोल्टेज, तो करंट कहां चल रही थी, यहां से चल रही थी। ओके, जब ये, इसका मतलब इसके और इसके बीच फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2 का है। कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रही है। पीछे कौन है, ये V है, ये I है। उसका उल्टा, L में कहा था, करंट पीछे चल रही थी। फेज डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये तो V0 बन गया भाई। चलो, करंट आगे चल रही है, ये ओमेगा टी है, कितना आगे चलेगी, 90 डिग्री। तो ये I0 है, तो ये कितना आगे चल रहा है, 90 डिग्री। तो फेज डायग्राम में करंट वोल्टेज से कितना आगे चल रही है, 90 डिग्री। और L में क्या था, करंट पीछे थी, कितना पीछे थी, 90 डिग्री। तो प्योर सी में कौन आगे होता है, करंट आगे होती है। इतना सबको समझ में आ गया। चलिए, हमने प्योर L पढ़ा, प्योर सी पढ़ा, प्योर R पढ़ा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं LCR सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट। ओके, दैट वी विल स्टडी। कि अब LCR तीनों, अगर किसी सर्किट में ये तीनों ऐड हों तो क्या होगा, उसी से सब कुछ हम जान लेंगे। जब किसी सर्किट में LCR तीनों टुगेदर हों, देन व्हाट विल हैपन, वी विल स्टडी रिगार्डिंग दैट। ओके, नाउ सी LCR मतलब जानते हैं ना, ये हो गया अल्टरनेटिव वोल्टेज। पहले L जोड़ दो, फिर C जोड़ दो, फिर R जोड़ दो। चलो जोड़ दिया हमने, L C R। ये क्या है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। एग्री, बड़ा आसान है। अब देखो L के बीच कितना वोल्टेज होगा, VL। C के बीच कितना वोल्टेज होगा, VC। और R के बीच कितना वोल्टेज होगा, VR। यार फेज डायग्राम से कुछ समझते हैं, बड़ा आसान है। देखो कितना आसान है।
अगर ये करंट है, प्योर आर में करंट वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस? 0। तो जिधर करंट है बेटा उधर ही क्या हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा। तो आई और वी आर में कोई फेज डिफरेंस नहीं। यल के कारण क्या होता है? कौन आगे होता है? वोल्टेज आगे होता है। कितना आगे होता है? 90 डिग्री आते हुए होता आगे होता है। किससे आगे होता है? करंट से। सो इन प्योर एल वी एल इज लीडिंग बाय 90 डिग्री। तो वी एल कहाँ चला गया बेटा? ऊपर चला गया। कितना चला गया? 90 डिग्री। एग्री? दैट इज नोन एज वी एल। और सी के कारण कौन आगे होता है? करंट आगे होता है। तो पीछे कौन हुआ? वोल्टेज। वोल्टेज कितना पीछे होती है? 90 डिग्री। तो वीसी चला आया नीचे। अब वीएल ऊपर है, वीसी नीचे है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? वीएल माइनस वीसी होगा। वीएल माइनस वीसी। हमने साइन ऑफ डिफरेंस लगाया है। साइन ऑफ डिफरेंस का मतलब ये होता है जो बड़ा होगा उसको पहले लिख देंगे। अब तो बड़ा आसान हो गया। एक वोल्टेज ये है, एक वोल्टेज ये है, इसका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा? हाई इस तरह जाएगा। मान लो फेज डिफरेंस फाई है, ये हो गया फाइनल वी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा। वी कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? रूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? दिस इज वीएल माइनस वीसी होल स्क्वायर प्लस इट इज वी आर स्क्वायर। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एल? आई एक्सएल। बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है? आई आर। तो एल में आर तो होता नहीं, एक्सएल होता है। वीसी में क्या हो जाएगा? आई एक्स सी स्क्वायर और प्लस ये क्या होता है? आई आर का होल स्क्वायर। ध्यान देखना, आई स्क्वायर यहां भी आएगा, आई स्क्वायर यहां भी, आई स्क्वायर यहां भी। हम कॉमन ले लेते हैं रूट के बाहर। अंदर क्या बना? एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v अपॉन आई इक्वल टू रूट एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और v अपॉन आई क्या कहलाता है जी? रेजिस्टेंस। लेकिन क्या आर के कारण है? नहीं, एल भी है, आर भी है और सी भी है। तो इसको बोलते हैं इम्पिडेंस ऑफ सर्किट। हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा, but in English it is called impedance and denoted by Z. So Z is equal to XL minus XC whole square plus R square. अब हमें फेज डिफरेंस चाहिए। यहाँ से फेज डिफरेंस कितना? फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज में। तो फॉर्मूला लगा लेंगे tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। वी एल की वैल्यू आई एक्सएल, वी सी की वैल्यू आई एक्स सी अपॉन आई आर। आई से आई कैंसल, एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। अब तुम ध्यान से देखो इस फिगर में, अगर सर्किट में यल न होता, केवल सी और आर होता, तो फॉर्मूला क्या बनता? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर सर्किट में एक्सी ना होता तो फॉर्मूला क्या बनता? एक्सएल प्लस आर स्क्वायर। अगर सर्किट में आर ना होता तो आर जीरो कर लो, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, माने केवल एक्सएल माइनस एक्सी रूट के बाहर चला आता। इसी से हम तीनों कंडीशन निकाल सकते हैं, इसी जगह से। अगर प्योर एल सर्किट हो, एल आर सर्किट हो, सी गैप होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा? वी एल बटे वी आर। अगर यल नहीं है, यल जीरो है, तो क्या बनेगा? वी सी अपॉन वी आर। क्लियर? और अगर आर नहीं है, आर इज जीरो, तो जीरो रखते ही क्या हो जाएगा? टेन इन्फिनिटी। क्लियर? सो दैट डिपेंड्स, कैसे करते वो हमें दिख जाएगा जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। So that was LCR circuit. It is the impedance of circuit,
and it is the phase difference of circuit. Tan phi is equal to XL minus XC upon R. So this much we have studied. Whenever I'll come in next video, I'll show you power in a different LCR circuit, very important topic. And also we'll study about the power factor in that. Thank you. Have a nice day. Mind your physics.